Hi everyone, hope all of you are doing well in your life. And this video, as the thumbnail suggests you, how to stay consistent. Consistency is the master, success is the mistress. What do I exactly mean by this? Well, जिंदगी में कोई भी काम करना हो, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, व्हाट इज दी फंडामेंटल थिंग अक्रॉस ऑल सेगमेंट. सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे. कोई छोटी सी बात. फॉर एग्जाम्पल लेट से दैट टुडे यू वांट टू टेक पार्ट इन द रेस. लेट से दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल बैंड. Let's say that you want to win a fashion competition. Let's say you want to propose someone. How do you do it? What is the first thing? You take a first step towards it. You take the first step towards it. And then it naturally seeps in your mind. होगा मुझसे कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, isn't it? So first step is to give thoughts to it. It's to take a positive action towards it. But then it indicates that you are too willing to walk that mile, that you want that thing, that you want that person, that you want that achievement. So you have already taken the first step, right? But that is not absolute and that is not enough. So for instance, if in a competition, let's say 10 lakh people fill a form, right? Imagine that 10 lakh people fill a form. Then out of this 10 lakh, only 5 lakh might have taken the first step towards it, which means that they sat down, they started studying the syllabus, studying the pattern, analyzing previous year papers, giving a thought to it. But who is going to get selected after all, right? So Manji movie देखी होगी. If you want to break a mountain, just by picking up the axe or the picking up the tool or picking up a hammer and sickle and breaking the rock for just one single day, would you ever be able to break a mountain? No, I don't think so. That is why consistency is the master and success is the mistress. If you are able to stay consistent in your efforts, let me tell you this with assurance. I mean it goes without saying that it will fall at your feet. It will come down at your feet. So there are a lot of psychological things, right? Right? Most of the times we tend to take right decisions, but life is very mean. People in this life are very mean. You will never be able to take a right decision, a perfect decision. Never. कभी ना कभी कुछ ना कुछ कसक बाकी ही रह जाएगी. कभी समय तुम्हारा साथ नहीं देगा, कभी माहौल तुम्हारा साथ नहीं देगा, कभी तुम्हारा मेंटल पीस तुम्हारी 12 बजा के रखेगा, कभी तुमसे जुड़े लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे. तो you will never be able to take a right decision in your life. So there is no right decision as such. You have to take a decision which you have already taken, that मुझे ज़िंदगी में ये करना है, यहाँ पहुँचना है और इस उम्र तक ये पाना है. तो अब उसको सही करने का प्रयास करना है, right? So this is the psychology of decision making. You never take right decisions. For an actor who is into a film industry, मूवी प्रोडक्शन कर रहा है, उसको पता रहेगा क्या कि ये मूवी बाद में जाके इतनी चलेगी. आप किसी भी एक्टर को उठा लीजिए जो लाइमलाइट में सडनली आया, कब से लगे हुए थे वो. कोई एक कहानी, कोई एक मूवी, कोई एक गाना चल गया. तो ज़िंदगी में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही है. वो भी ऐसे ही है. तुम हर दिन प्रयासरत रहो, किसी एक दिन सीधे रिजल्ट तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा. अब होता क्या है, उसमें कंसिस्टेंसी का एक टाइम पीरियड हम बांध देते हैं कि 2 महीना प्रिपरेशन, 3 महीना प्रिपरेशन. नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन में जो रूडिमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो है. अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में 11 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल की लागत लगती है तो लगेगी ही लगेगी. क्यों ऐसा होता है कि क्लैट जैसे पेपर को 2 इयर्स वाले बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं, जो 11th 12th में करते हैं. जो सीधे 12th या 12th के बाद आते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. So any examination in which you're taking the first step, it might not be a perfect step. It can be a perfect step. Had it been the case that तुम उसका पिछला पूरा पेपर अटेम्प्ट करके ऐसे आए हो जैसे कि मान लो वो क्लैट का पेपर रहा हो या वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रहा हो. कमिंग टू दैट थॉट, देर इज दिस सियाल्डिनीज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. होता क्या है, क्यों कहते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए और आपका अपना एक रूटीन होना चाहिए. मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं
कि आपका क्या वीकली टाइम टेबल होगा, किस तरीके से आप पूरे प्लान क्लैट की प्रिपरेशन को, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे प्लान करोगे। तो ये सियाल्डिनी का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि वंस पीपल मेक अ डिसीजन नो, दे टेक अ स्टैंड एंड दे परफॉर्म एक्शन टुवर्ड्स इट। नाउ दिस इज अबाउट इंटरपर्सनल प्रेशर एंड इंटरपर्सनल कमिटमेंट। आपकी आत्मा आपसे ही सवाल कर रही होती है कि बेटा कल रात को बैठ के तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतने बड़े बड़े सोने के पहले प्लान बनाए थे, इतना डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट इमेजिनेशन है खुद की लाइफ को लेके, और आज पूरा दिन बीत चुका है, वर यू एबल टू फॉलो दैट। सो कभी कभी क्या होता है, आप अपना शेड्यूल बनाइए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, अपने घर वालों को शेयर कर दीजिए। रोज़ सुबह शाम वो आपको 4 गाली बकेंगे कि क्यों, पेपर में तो बड़ा लिखे हो, 7:30 वेकअप, 8 AM ब्रेकफास्ट, 9 AM सिट टू स्टडी, 1 PM ब्रेक, और बेटा तुम तो आधे घंटे में ही फ़ोन उठा लिए। तो इस तरह का जब ताना आता है ना, तो हमारा मोराल जो होता है टूटता है, हमें बुरा लगता है। 4 लोग हमें हम ही ने साला उनको शेड्यूल दिया और वो आज हम ही को सुना रहे हैं, हम नहीं देते तो उनको शेड्यूल कैसे पता चलता। इस तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, पर ये निगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि अच्छा है, साला टोक रहे हैं तो हम राइट एक्शन पे आ जाएंगे। कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी प्लान आपने बनाया है तो आप अगले दिन से ही उसको एकदम रेजिमेंटल मिलिट्री कंट्रोल की तरह नहीं कर सकते, बिकॉज कोई डंडा मारने वाला नहीं है। लेकिन एक इंटरपर्सनल कमिटमेंट की फीलिंग रहती है यार, कि खुद से बनाया है प्लान, खुद के लाइफ के लिए, खुद के एग्जाम के लिए, और मैं ही नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। तो जब ज़िंदगी में मेरे द्वारा लिए गए फैसले जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जब मैं उन पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं उन पे एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं दूसरों की ज़िंदगी को क्या घंटा बदलूंगा? क्या घंटा मेरा एग्ज़ाम निकलेगा? मुझसे बहुत बेटर लोग हैं बाहर मार्केट में, बेहतर लोग हैं जो एटलीस्ट अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं और अपना विजन क्लियर रख के डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह के जो थॉट्स आने लगते हैं, उसी पे सियाल्डिनी प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी साइकोलॉजिकल लूप क्रिएट करता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करता है आपके दिमाग में कि नहीं यार आज मैंने फॉलो नहीं किया, अपना टाइम टेबल गड़बड़ है। So that again the same thing is that you need to take a decision, you need to chart it out, you need to make a steady routine, and you need to fix to it, right? Please understand that consistency is not people are born with it. कोई बंदा consistent पैदा नहीं होता है। Consistency is adaptive. पहली बार आपने राइट स्टेप लिया, राइट, वो उसको आप रिपीट करते रहिए डेली, राइट, इट इज़ कंपल्सरीली रिपीटेड। तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको रिपीटिशन मोड पे नहीं लेंगे। एंड ट्रस्ट में किसी भी चीज़ को रिपीट मोड पे करना इज़ वेरी बोरिंग। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आप एक ही मूवी जो आपने देखी है, आप उसको रिपीट कितने कितने टाइम पीरियड बाद करते हैं, राइट। और कोई भी किसी भी मूवी को बार बार देखते हैं तो मे बी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बट पढ़ाई ऐसी नहीं है, मेहनत ऐसी नहीं है। कौन मेहनत करना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है? ज़िंदगी में सबसे बोरिंग काम अगर है तो वो क्या है? वो पढ़ाई है। फुटबॉल खेलना इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट खेलना इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग करना इंटरेस्टिंग है, गाना गाना इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि तुम नहीं करते, तुम उसका आउटकम देखते हो। जो उसको डेली करता है वो उसके लिए भी बोरिंग है। एक एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए डेली रील बनाना तुमको क्या लगता है आसान होता है? नहीं होता है। तो हर कोई अपने अपने उस पर प्रयासरत है, लेकिन उसमें सबसे बोरिंग काम क्या है? पढ़ाई, राइट। तो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी अडेप्टेशन से आएगी, रिपीटेशन से आएगी। स्टार्टिंग में आपको कमिटमेंट और डिसिप्लिन चाहिए। स्टार्टिंग में आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना है तो करना है। स्लोली स्लोली यू विल फाइंड दैट ये आदत बन चुका है, ठीक है। अब आँख खुलती है तो सुबह 10 बजे भी, तो 11 बजे हम हमारी स्टडी टेबल पे होते हैं। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुलती है तो 7:30 बजे तक हम बाय रिफ्लेक्स एक्शन स्टडी टेबल पे होते हैं। ये हो जाएगा कुछ समय के बाद, और फिर आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा। फिर अगर एक दिन आपका ऐसा चला गया जिस दिन 7:30 बजे आप अपनी स्टडी टेबल पे सुबह नहीं बैठे हो, तो उस दिन आपको इरिटेशन होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी कोई लेके नहीं पैदा होता है, लोग अपने प्रयास से अडेप्ट करते हैं, रिपीटिशन से, डिसिप्लिन से, और फिर ये हैबिट बन जाती है, और फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। तुम में और तुम्हारी कामयाबी में, तुम में और तुम्हारी कामयाबी में, तरक्की में सिर्फ यही गैप है। दिस इज़ द गैप। इफ़ यू कैन फिल इट, if you can fill it, yours is the world and everything that is in it, right? And trust me, only you can do it. कोई और नहीं कर सकता ये काम, सिर्फ तुम ही कर सकते हो ये 4-5 स्टेप्स। So the internal commitment that you have to make, right, towards your own personal goals is much bigger than
एन इंस्टीट्यूशनल और अ टीम कमिटमेंट और एनी एक्सटर्नल कमिटमेंट। मैं आज तुमको ये बोलूँ कि तुमको ये करना है, तुमको ये टास्क कितने टाइम में करना है, तुम नहीं करो, मे बी तुम आलस दिखा दो। बट अगर तुमने खुद के पर्सनल गोल के लिए सोचा करो यार ऐसे कि एग्ज़ाम क्यों देना है, ये पेपर क्यों निकालना है, कौन जाएगा कॉलेज में, किसको बेहतर लोग मिलेंगे, किसको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसको 16 17 18 लाख कमाने का स्टार्टिंग में 21 22 23 साल की उम्र में 18 लाख 16 लाख का पैकेज किसका लगेगा? तुम्हारे माँ बाप को तो नहीं लगेगा, तुम्हारे भाई बहन का नहीं लगेगा, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं लगेगा। अगर हर महीने खाते में, इमेजिन करो तुम्हारे हर महीने खाते में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, राइट, तो उससे आने वाली गाड़ी 1 साल के अंदर अंदर में 25 30 लाख की गाड़ी कौन अफोर्ड कर पाएगा? तुम ही कर पाओगे। तो ये किसकी ज़िंदगी के लिए ये फैसले लेने हैं? तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। क्यों तुम्हें डेली पढ़ना है? तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। क्यों तुम पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर एंड यू आर नॉट हैप्पी विथ वट यू हैव एज ऑफ नाउ। तुम्हें तुम्हारा खुद का बनना है, अपने दम पे बनना है। तो ये पर्सनल गोल के लिए मोटिवेशन ढूंढते क्यों है? मोटिवेशन तो हम तभी ढूंढने जाते हैं जब या तो हमें ये पता होता है कि इधर वी आर नॉट इनफ, या हमें ये लगता है कि वी आर बीइंग प्रेशराइज्ड इनटू दिस एस्पेक्ट। तो दोनों ही स्टेट में आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है, ऑलरेडी फील आ रहा है कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट वर्दी फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आप कभी भी मेहनत करने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, और कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो वो पेपर में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपको कोई ढकेल रहा है इस एग्ज़ाम की तरफ, तो आप 1 दिन 2 दिन दिखाने के लिए कर लोगे, चौथे दिन आप छोड़ दोगे, राइट। आप लोग ये समझिए कि आपका जो एजुकेशन का पर्पस है वो इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट है। समाज सुधार, देश कल्याण, समाज कल्याण और गरीबों का उद्धार करने के लिए हम वकालत की पढ़ाई नहीं कर रहे, हम क्लैट की तैयारी नहीं कर रहे। हम हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, लाविश लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने के लिए और दमखम रखने के लिए, एक सॉलिड बैकग्राउंड रखने के लिए क्लैट की तैयारी करते हैं क्लास 12th में। वरना क्या ज़रूरत है? वरना तो जितनी प्रेस्टीज शायद आईआईटी जाने में है, उतना तो एनएलयू जाने में प्रेस्टीज भी नहीं है। लोग जानते भी नहीं नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, राइट। तो पर्पस जब क्लियर है ना, तो आपको खुद से ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा। सो यू गॉट टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट अगर तुम अपने दिए गए पर्सनल गोल्स और पर्सनल कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते हो दोस्त, तो ना तो तुम विश्वसनीय हो, ना तो तुम कारगर हो, ना तुम काबिल बन पाओगे। और ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं, ये 3 बहुत बड़ा जजमेंट है जो कि आज दे दिया है तुम्हारे खुद की हरकतों ने। बदल सकते हो उसको, तो अभी भी समय है, बदल लो। देयर इज स्टिल टाइम वेयर यू कैन ब्रिंग द चेंजेस, इजंट इट? तो इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन द स्टार्टिंग, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मन नहीं लग रहा है सर पढ़ने में, 3 आवर्स का स्टडी रूटीन है सर, स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए। स्टॉप वॉच में आप देख रहे हैं कि 25 मिनट में ये बैरियर आप थक जा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे इसको। अगले दिन कोशिश करेंगे अगला राउंड 35 मिनट्स का हो, फिर अगला राउंड 45 मिनट्स का हो, फिर 1.5 घंटे का हो। और इसको कोशिश करेंगे कि यार 30 40 डेज़ में हम एटलीस्ट 3 आवर्स तो बैठ के पढ़ें एक सब्जेक्ट। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एफर्ट लेना पड़ेगा। जादू नहीं होगा अचानक से, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा, राइट। फिर धीरे धीरे आपको एक्वलेट्स एंड रिवॉर्ड्स लेटर स्टेज में मिलने लगेंगे। और फाइनल एक्वलेट और फाइनल रिवॉर्ड क्या है दोस्त? एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाना। जब रिजल्ट सोचो, इमेजिन करो, वो इमेजिन मैनिफेस्ट किया करो इस चीज़ को कि क्लैट कंसोर्शियम का रिजल्ट पता चला है, डिक्लेयर हुआ है, तुम लॉगिन कर रहे हो, रोल नंबर और आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, और अंडर 100 रैंक है तुम्हारी। फिर उसके बाद तुम अपनी मम्मी को बता रहे हो, तुम अपने पापा को बता रहे हो। इमेजिन करो कि उनके चेहरे पे क्या खुशी होगी, क्या फ़क्र होगा उनको, क्या मेरी औलाद क्या उखाड़ के बैठी है। क्या नहीं देना चाहते तुम ये खुशी? देना चाहते हो ना? इससे बड़ा मोटिवेशन भी कुछ नहीं होता है। हमें हमारी इस उम्र में हमें सबसे बड़ा अपीजमेंट, सबसे बड़ा वैलिडेशन, सबसे बड़ा सपोर्ट या सबसे बड़ा प्राउड फीलिंग अपने पेरेंट्स को ही देना रहता है। उसके बाद समाज आता है। तो आप एक बार को, कहते हैं ना, माँ बाप से चिढ़ सकते हो, नाराज़ हो सकते हो, पर उनके चेहरे पे फिर भी वो खुशी देखना चाहते हो। आप रोज़ लड़ते होगे अपने माँ बाप से, रोज़ फाइट करते होगे, रोज़ आर्ग्यूमेंट होता होगा, पर अपने दिल से हाथ रख के बोलो कि क्या ये मौका तुम उनको नहीं देना चाहते कि वो मुस्कुराएं, वो प्राउड फील करें? अगर वहाँ तक पहुँचाना है खुद को ना, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने टाइम पे, अपने एफर्ट्स पे।
और ये कोई, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जादुई किताबें नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, ये बाकी लोग क्या बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर यही सब तो बात करते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड वे में लाइफ नहीं जी सकते, है ना। बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड वे में लाइफ नहीं जी सकते। आप मिलिट्री नहीं हो, आप आर्मी नहीं हो, रेजिमेंटल नहीं हो, लेकिन एक छोटी सी ज़िंदगी में एक काम तो कर सकते हैं कि अपने पर्सनल गोल्स के लिए, अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए कॉन्विक्टेड रहें। कॉन्विक्टेड का मतलब ये रहता है कि आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज आई हैव डिसाइडेड इट। साला दुनिया का कोई आदमी मेरे को टस से मस नहीं कर सकता, इतना ही तो करना है। कौन तुमको कह रहा है कि तुम रोज़ सुबह उठ के 8 किलोमीटर दौड़ो, सिक्स पैक्स एब्स बनाओ, बल्ले हो तुम्हारे, ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी हो। मूवी स्टार थोड़ी हो तुम, अल्फा मेल थोड़ी हो तुम, हैं। और तुम कोई अदाकारा थोड़ी हो, एक्ट्रेस थोड़ी हो, तुमको कोई फैशन टीवी के उसमें रैम्प वॉक थोड़ी करनी। कम ऑन पीपल, वी आर नॉर्मल पीपल, वी आर नॉर्मल बींग्स। All that we can achieve in this life is, the only achievement that we can make at the end of the road is how deep are our pockets. And to deepen your pockets, see dear, either लूट लपाट कर लो जाके, है ना, फिर धर लिए जाओ, सोटे पड़े, पिछवाड़ा ला लो, या पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, मस्तिष्क का श्रम इस्तेमाल करो, मेंटल लेबर करो और रिवॉर्ड पाओ, है ना। तो यही सिंपल सा तरीका होता है। मध्यम स्तर परिवार में से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर में एक गाड़ी है, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास 2 जोड़ी चप्पल है, 10 जोड़ी कपड़े हैं, मध्यम स्तर परिवार के तुम हो, 1 मंजिला 2 मंजिले का घर है तुम्हारा, 3 कमरे में कहो 5 लोग समा जाते हो, 6 लोग समा जाते हो, मध्यम स्तर परिवार है। अगर इन सबको बदलना है, अपनी जीवन में अपनी जीवन रेखा को बदलना है, तो ये कठिन दौर तपना पड़ेगा। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, तो तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, रोज़ लड़ना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ हारोगे, रोज़ जीतोगे, पर रोज़ लड़ोगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, तभी एक्कोलेट्स आपको एट अ लेटर स्टेज मिलेगा। ये ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं आतंकवादियों का, कि उनको लगता है कि वो अगर बम लगा के खुद को उड़ा देंगे तो वो सीधे उनको जन्नत मिलेगी, और जो भी उनको लगता है, जो भी उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी तरक्की के लिए ये इंडोक्ट्रिनेशन मैं आपके अंदर करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट से। डेली एफर्ट्स लेने हैं, डेली यू हैव टू टेक अ डेली स्ट्राइड टुवर्ड्स योर गोल। ये नहीं कि आज बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए फिर ड्रॉप हो गया, कभी नहीं पहुँचोगे। पेंडुलम हिलता भर तो है पर पहुँचता कोई कहीं नहीं, लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो कुछ है पर पाता कुछ नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन डेली 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 जो तुम एफर्ट डाल रहे हो ना, एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आएगा और सडनली तुम ऊपर उठने लगोगे। सो दिस इज़ दी इंटर रिलेशन ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एक्शन। बट अगर आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं ले रहे हो कंसिस्टेंटली डेली, तो क्या कभी ये ब्रेक थ्रू तक पहुँचोगे? नहीं। तो कोशिश है, जो सक्सेस और फेल्योर के बीच का डिफरेंस है, वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू द ब्रेक थ्रू पॉइंट है, जो आप नहीं लेना चाहते। एंड एट लास्ट, आपको मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत है? यू ऑलरेडी नो, दाव पे क्या लगा है? पूरा जीवन। दाव पे पूरा जीवन लगा है। कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीनी है या वर्थ इट होके वर्दी बन के जीना है, कि साला कुछ बोल दो तो 10 लोग सुने, 10 लोग तुम्हारे नाम की दुहाई अपने बच्चों को दें। तुम्हें पता है पूरा ज़िंदगी दाव पे लगा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू कांट ओन योर शिट्स, इफ़ यू कांट चेंज योर हैबिट, यू विल नेवर सर्व अ मीनिंगफुल लाइफ। आज नहीं, कभी भी, यहाँ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ओन योर शिट्स, वर्क थ्रू इट, ब्रिंग द चेंज। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, यू जस्ट नीड अ पर्पस एंड अ क्लियर विजन। क्या करना है, क्यों करना है, इफ़ दैट इज़ क्लियर, यू डोंट नीड वैलिडेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, इट्स ऑलरेडी देयर इनसाइड यू। हर दिन सुबह उठ के उस जंग में तुम शुमार हो जाओगे। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, आखिरी की पंक्ति कहूँगा और बहुत कॉमन है, सभी ने सुनी होगी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा, कोशिश में जो छुपा हुआ शब्द है वो कंसिस्टेंट एफर्ट है। कंसिस्टेंट एफर्ट, रिलेंटलेस परज्यूट, ठीक है, एंड परजीवरेंस। परजीवरेंस,
जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक उस मुकाम पे पहुंचूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं. As simple as that.